Hello students, welcome to Siddhi Academics. I'm Amrita. I firmly believe that you should keep trying until we get it right. So let's start our trial for today. We had done a few questions of exercise 8D in our previous video. We'll do some more today and the rest in the next video. But for that, we should be very clear with exponential addition and subtraction. उसके लिए मैं जो वीडियो मैंने पहले बना रखा है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. प्लीज़ चेक दैट आउट एज वेल. अदरवाइज फंडामेंटल क्लियर नहीं होंगे तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये सॉल्व करने में समझने में मुश्किल होगा. So let's start. Now let's start with exercise 8D, question number 8. So we have got a big square bracket, a curly brace and a round bracket. So first we will remove the round bracket according to the order of execution of the brackets. So let's start. We will write everything as it is. Now here outside there is -1, inside we have no sign along with the 5. So this is a plus sign. So minus and plus will give us, we know different signs will give us a negative integer. So or a negative term here. So minus 5y. Same sign minus and minus will give us plus 2x. We close the curly brace and then the square bracket. We move to the next step. Next step will be grouping the like terms. I am trying not to miss any step so that it's very clear. So here we group the like terms. So x and 2x will give us 3x minus 5y. So now we have to remove the curly brackets this time. Minus outside and inside there is no sign meaning plus. So different sign will give us a minus 3x. Minus outside and minus inside will give us plus 5y. So here again we have 5y and 5y, two like terms. I write them together in this step. So it becomes 10y minus 3x inside the big bracket or the square bracket. Now it's time to remove the square bracket. Plus outside plus inside plus 10y. Two different signs here, plus and minus. So definitely it will give us a minus 3x. Now is the time we can write the like terms together. Minus 3x minus 4x plus 10y. So the answer is minus 4x plus 10y for question number 8. Let's move to question number 10. Question number 10 is a very long expression but with the same set of brackets. Square bracket, curly bracket and round bracket. So first we will remove the round bracket. So let's start. We will write all the terms as it is जब तक हम नहीं पहुंच जाते near the curly brackets. Just one moment, I'll just check the question again. Yep. So यहाँ पर 7x square, yes. So यहाँ पर माइनस है और बाहर है, बाहर माइनस है और अंदर 4 है, मतलब प्लस 4 है. So it will be minus 4. यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, so it will be plus 3x. सेम साइन हो तो पॉजिटिव आएगा और माइनस जैसे है, और अगर डिफरेंट साइन हो जैसे माइनस और प्लस हो तो फिर हमें मिलेगा नेगेटिव. सो माइनस और माइनस यहाँ पर है, सो इट विल बी प्लस एक्स क्यूब. हो गया. वी रिमूव द राउंड ब्रैकेट. नाउ वी विल एंड द कर्ली ब्रैकेट एंड एंड द स्क्वायर ब्रैकेट. सब कुछ वैसे के वैसे लिख लेंगे. अब यहाँ पर विदिन द कर्ली ब्रैकेट्स वी कैन सी एक्स क्यूब और 6x क्यूब. ये दोनों लाइक टर्म्स हैं और पास पास ही लिखा हुआ है, बाकी किसी के पास और दूसरा लाइक टर्म नहीं है. सो इस वाले स्टेप में हम उनका एडिशन और सब्सट्रैक्शन डिपेंडिंग ऑन द साइन हम कर लेंगे, क्योंकि सेम साइन है, प्लस है. दिस इज नथिंग इज रिटन ओवर हियर, मतलब +1 है और यहाँ पर +6 है. सो 6 + 1 विल बी 7x क्यूब.
यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वी शुड बी वेरी क्लियर विथ इंटीजर्स, अदरवाइज हम यहाँ पर गलतियाँ कर सकते हैं। और पावर लिखते वक्त भी वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द एक्सपोनेंट्स। सो 3x³ + 5x²। अब इस स्टेप में हम क्या कर्ली ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, बाहर माइनस है, अंदर कोई साइन नहीं है 7 के साथ, मीन्स इट्स अ पॉजिटिव इंटीजर। सो माइनस और +7 हो जाएगा -7x², क्योंकि डिफरेंट साइन, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस, सेम साइन, सो +4, माइनस प्लस डिफरेंट साइन, सो -3x। यही याद रखना है, डिफरेंट साइन हो आउटसाइड और इनसाइड द ब्रैकेट, एनी ब्रैकेट, इट कुड बी राउंड, इट कुड बी कर्ली और इट कुड बी स्क्वायर, जो भी ब्रैकेट हो, अगर डिफरेंट साइन है तो माइनस और अगर सेम साइन है तो प्लस। नाउ वी राइट द -3x एंड क्लोज द स्क्वायर ब्रैकेट। मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर हम जो कुछ भी है लाइक टर्म्स उनको आसपास लिख लेते हैं, सो दैट वी कैन सिंप्लीफाई। 3x³ के साथ मुझे मिलेगा -7x³, तो मैंने उसको लिख लिया पास। 5x² लिख लेती हूँ और उसके पास -7x² ऑलरेडी है, सो आई राइट देम टुगेदर। देन यहाँ पर है -3 और यहाँ पर दूसरा है -3, सो इट इज़ -3x -3x एंड +4। नाउ सॉल्व करते हैं। 12x, यहाँ पर 3 - 7 करना है, राइट, कोफिशिएंट यहाँ पर 3 है, यहाँ पर -7 है। सो हम जानते हैं इन केस ऑफ इंटीजर एडिशन और सब्सट्रैक्शन, जब डिफरेंट साइन होता है तो हमें सब्सट्रैक्शन करना होता है, 4 लिखेंगे और 7 का वैल्यू ज़्यादा है तो उसका साइन माइनस आ जाएगा आंसर में, इट्स -4x³। सिमिलरली यहाँ पर 5 और -7 करना है, सो +5 - 7 मीन्स इट विल बी 2 सब्सट्रैक्शन, और फिर जो एब्सोल्यूट वैल्यू है 7 का ज़्यादा है तो उसका जो साइन है माइनस आंसर में आ जाएगा, -2x²। यहाँ पर -3 है, सेम साइन, सो एडिशन होगा और उन्हीं का साइन आ जाएगा आंसर में, इट्स -6x +4। नाउ इज द टाइम फॉर अस टू रिमूव द स्क्वायर ब्रैकेट। सो माइनस और माइनस होगा +4x³, माइनस और माइनस सेम साइन, सो +2x², माइनस और माइनस प्लस अगेन +6x, और फाइनली इधर हो जाएगा -4, बिकॉज ये डिफरेंट साइन है, बाहर माइनस है और अंदर प्लस है, सो फाइनली 4 जो कांस्टेंट टर्म है इट विल बिकम नेगेटिव। नाउ वी मूव टू राइटिंग द लाइक टर्म्स टुगेदर। यहाँ पर 12x है, सो आई राइट द 12x हियर एंड 6x हियर टुगेदर एंड -4 एट द एंड। सो फाइनली मेरा आंसर क्या बन के आएगा, 4x³ + 2x² + 12 + 6, राइट, क्योंकि ये जो है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स का एडिशन होगा, यहाँ पर सेम साइन का है इसलिए, और उनका साइन जो है प्लस आ गया आंसर में, +18x हो गया -4। सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10, 4x³ + 2x² + 18x -4। Start with question number 11. Question number 11 has same set of brackets, square, curly and round brackets, but यहाँ पर थोड़ा different है। यहाँ पर एक टर्म दिया गया है आउटसाइड एंड इनसाइड एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है राउंड ब्रैकेट का। सो यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाइड हैं, यहाँ पर भी ये दोनों मल्टीप्लाइड है, नो साइन, देयर इज़ नो साइन, नो मल्टीप्लिकेशन साइन, बट स्टिल क्योंकि यहाँ पर एक टर्म है और उसके बाद कोई भी साइन नहीं है और एक ब्रैकेट शुरू हो जाता है, ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन है, दैट मीन्स एंटायर एक्सप्रेशन इज मल्टीप्लाइड विद द टर्म और द एक्सप्रेशन आउटसाइड द ब्रैकेट। तो ये चीज़ हमें पहले समझ लेनी है। और दूसरी चीज़ हमें जो है एक्सरसाइज 8A में हमने जो एक्सपोनेंशियल एडिशन किया था वो समझना है कि जब हम एक टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं उसके साथ तो उसका एक्सपोनेंट जो है वो बढ़ता जाता है। a इंटू ए इज़ a², a इंटू ए 3 टाइम्स a इज़ मल्टीप्लाइड मीन्स इट्स a³। तो ये जो चीज़ है, फॉर दैट आई विल ऐड द exercise 8A video link in the description and you can check it out। फिर भी just to understand मैं यहाँ पर फिर से बता देती हूँ, a इंटू ए मतलब a पावर में ऐड हो जाएगा 1 + 1, इसका पावर 1 है, इसका पावर इस a का पावर 1 है। सो फाइनली वी विल गेट पावर एडिशन के बाद, एक्सपोनेंशियल एडिशन के बाद a²। सिमिलरली
ए स्क्वायर में अगर दूसरा ए मल्टीप्लाई कर दें तो ए 2+1 होगा पावर में, ए टू द पावर ऑफ 2+1 इन द एक्सपोनेंट. सो फाइनली यू विल गेट ए क्यूब. तो ये चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में अप्लाई होगा. वी शुड बी वेरी क्लियर विथ इंटीजर एंड एक्सपोनेंट्स व्हेन वी स्टार्ट एंड अटेम्प्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. सो मैं सब कुछ वैसे के वैसे लिख देती हूँ. नाउ हम आ गए इस राउंड ब्रैकेट को रिमूव करने के लिए. सो यहाँ पर 2a इज़ मल्टीप्लाइड विथ 1. सो 2 इंटू 1 होगा, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन होगा. सो 2a आएगा. नाउ वी मूव टू 2a माइनस a. यहाँ पर माइनस a है मतलब -1 है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट. सो 2 इंटू -1 डिफरेंट साइन है. सो आंसर आएगा -2 और a मल्टीप्लाइड हो रहे हैं तो हमें जैसे हमने पहले देखा a स्क्वायर्ड हो जाएगा. वेरी क्लियर विद एक्सपोनेंट्स एंड वेरी क्लियर विद इंटीजर्स बिफोर वी अटेम्प्ट सच क्वेश्चंस. 2a बाहर है और अंदर है +4a स्क्वायर. 2 इंटू 4 न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे. 2 4 8 हो जाएगा और a इंटू a स्क्वायर मल्टीप्लाई होके हो जाएगा a क्यूब, बिकॉज पावर में क्या होगा 2+1 एडिशन. सो ये वाला हमने सॉल्व कर लिया. नाउ वी मूव टू दिस वन -3a और यहाँ पर a स्क्वायर है. सो इट विल बिकम 3a क्यूब, राइट. 3a स्क्वायर है तो ये हो जाएगा -3a क्यूब्ड. यहाँ पर 1 है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट. सो -3 इंटू 1 इज -3 और a इंटू a स्क्वायर है a क्यूब्ड. यहाँ पर अगेन हम करेंगे -3a इंटू -5a. सो इट विल बिकम -3 इंटू -5. लाइक साइन से, लाइक साइन इंटीजर है, सो इट विल बिकम प्लस इन द आंसर. +3 5 15 और a स्क्वायर्ड हो जाएगा क्योंकि a इंटू a हो रहा है. नाउ लेट्स मूव टू -3a इंटू -3. हियर ऑल्सो -3 इंटू -3 सेम साइन इंटीजर्स है. सो इट विल बिकम +9 और a हम वैसे के वैसे लिख लेंगे. कर्ली ब्रैकेट बिग ब्रैकेट बंद करके -8a बाहर लिख लेंगे. नाउ नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, वी विल ग्रुप ऑल द लाइक टर्म्स टुगेदर. लाइक टर्म्स क्या क्या है, लेट्स सी. 2a का कोई दूसरा लाइक टर्म है तो उसके पास लिख लेंगे. यहाँ पर +9a है, सो राइट इट टुगेदर. फिर -2a स्क्वायर, कोई दूसरा a स्क्वायर टर्म है, हाँ है 15a स्क्वायर, सो आई राइट +15a स्क्वायर. और +8a क्यूब -3a क्यूब वी राइट एट द एंड. वी क्लोज द कर्ली ब्रैकेट, क्लोज द स्क्वायर ब्रैकेट एंड राइट -8a. नाउ इस स्टेप में हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे. a स्क्वायर माइनस यहाँ पर 2 + 9 होगा. 2a + 9a मतलब 2 + 9 11 आएगा और a लिख लेंगे 11a. -2 + 15, सो 15 - 2 हो गया 13 +13 हो गया +13 a स्क्वायर. न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को ही देखना है ड्यूरिंग सब्सट्रैक्शन और एडिशन. +8 - 3, सो 8 - 3 इज 5 वी नो, सो वी राइट +5 a क्यूब. वी क्लोज द curly bracket and the square bracket and we write -8a. Now 5a minus, we will move to removal of the curly bracket. So we have to change the sign, we have to look at the sign. Minus is outside and inside there is 11. So minus here plus inside. So different sign मतलब minus ही रहेगा, -11a हो जाएगा. Minus here and plus here. So same different signs है inside and outside, so it will be -13a square. Minus and plus again different signs, so it will give us -5a cube. हमने curly bracket remove कर लिया, so we will not put the curly bracket, we will put the square bracket and write -8a. उसके बाद हम इसके अंदर कोई like terms है तो आसपास लिखेंगे. a square -13a square -11a -5a cube -8a. सो हमने a स्क्वायर और -13a स्क्वायर को ग्रुप कर लिया है. अब इस स्टेप में हम विल सिंप्लीफाई. यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है मतलब कोफिशिएंट है +1, सो +1 इन +1 और इधर है -13. सो डिफरेंट साइन है, सो इंटीजर सब्सट्रैक्शन होगा. 13 - 1 इज वी नो 12 और क्योंकि 13 का वैल्यू बड़ा है तो उसका जो साइन है वो अल्टीमेटली
इस न्यूमेरिकल कोफिशिएंट में आ जाएगा। -12a² हो गया, -11 -5a³ -8a। नाउ टाइम टू रिमूव द स्क्वायर ब्रैकेट। 5a माइनस और माइनस, बाहर भी माइनस अंदर भी माइनस, सो इट विल बिकम प्लस, सेम साइन है तो प्लस हो जाएगा। माइनस एंड माइनस अगेन इट विल बिकम +11a, अगेन माइनस एंड माइनस इट विल बिकम +5a³ और -8a बाहर। नाउ इस स्टेप पे हमने रिमूव कर दिया है स्क्वायर ब्रैकेट, सो यहाँ पर गलती से मैंने लिख लिया, सो आई एम जस्ट गिविंग इट अ कट। इस स्टेप में हम लोग सारे जो है लाइक टर्म्स हम एक साथ लिख लेंगे, +5a +11a -8a +12a² +5a³। सो ये हो गया 5a +11 हो गया 16, 16 - 8 हो गया 8, 8a +12a² +5a³। So this is the answer for question number 11. Now we will start with question number 12. Question number 12 में हम वैसे ही पहले की तरह राउंड ब्रैकेट्स फर्स्ट टाइम रिमूव करेंगे. So everything until the round bracket comes we need to write as it is. Now यहाँ पर माइनस बाहर है, अंदर +5 है, so it will be -5. डिफरेंट साइन मतलब नेगेटिव इंटीजर, माइनस और प्लस अगेन. सो नेगेटिव इंटीजर यहाँ पर 1 के साथ कुछ भी y के साथ कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब 1 है. सो इट्स -y नाउ, मतलब -1 हो गया न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बिकॉज डिफरेंट साइन. यहाँ पर सेम साइन जब भी एनकाउंटर करेंगे तो हमें पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा एट द एंड. सो इट विल बी +3. नाउ वी राइट द +2x² and close this bracket, curly bracket, and then we move to remove this round bracket here. So यहाँ पर माइनस है बाहर, अंदर कुछ भी नहीं लिखा, मतलब +1 है. So minus and +1 will give us -x² and minus and minus will give us +3y. So दोनों राउंड ब्रैकेट्स हमारे स्टेप में रिमूव हो गए. Now we will first group the like terms inside the curly bracket. 2y और -y को एक साथ लिख लेंगे. -5x के साथ कुछ भी नहीं है, हम वैसे ही लिख लेंगे उसको, -y +3 +2x². इनके साथ कोई और दूसरा लाइक टर्म नहीं है. -x² +3y and end the big bracket. 3 - x माइनस, यहाँ पर 2y - y मतलब होगा हमारा y, मतलब 2 - 1 ही कर रहे हैं. न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 2 है, इधर -1 है. सो 2 - 1 हो गया y -5x. और यहाँ पर दूसरा यहाँ पर ये है नहीं, मैंने गलती से लिख लिया था, सो आई जस्ट कटिंग इट ऑफ. +3 +2x² क्लोजिंग द कर्ली ब्रेसेस, राइटिंग द -x² +3y एंड क्लोजिंग द स्क्वायर ब्रैकेट. 3 - x. यहाँ पर अगेन हम इस कर्ली ब्रैकेट को रिमूव करेंगे. सो बाहर माइनस है, अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब +1 है, डिफरेंट साइन है, सो -y होगा. माइनस और -5x विल गिव अस +5x, और माइनस और प्लस होगा -3. माइनस और +2x² होगा -2x², -x² +3y. क्लोज द स्क्वायर ब्रैकेट. 3 यहाँ पर हम सारे जो लाइक टर्म से एक साथ लिख देंगे, x + 5x और -y +3y -2x² -x². -3 के साथ कोई दूसरा कांस्टेंट टर्म नहीं है, सो मैंने उसको लास्ट में लिख के स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर लिया. यहाँ पर हो गया हमारा 1 है, कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है. 1 + 5 करना होगा हमें, 6x हो गया. -y +3y है, so मतलब 3 - 1 करना है. यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब 1 है और माइनस साइन है पहले, तो -1 है. 3 - 1 मतलब 2 होगा +2y, और यहाँ पर -2 - 1 है. सो -2 - 1 लाइक साइन इंटीजर्स हैं, सेम साइन इंटीजर्स हैं, एडिशन होगा -3x² एंड वी विल राइट द -3 एंड क्लोज द बिग ब्रैकेट. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट स्टेप. 3 विल रिमूव द स्क्वायर ब्रैकेट. माइनस है, अंदर प्लस है, सो इट विल बी -6x. डिफरेंट साइन अगेन, -2y.
ये सेम साइन हो गया, माइनस बाहर माइनस 3x² भी, सो सेम साइन हो गया, सो इट विल बी प्लस 3x²। अगेन सेम साइन हो गया, माइनस एंड माइनस, सो इट विल बी प्लस 3 हो गया यहाँ तक। नाउ 3 + 3 ये हम एक साथ लिख लेंगे, 3 + 3 बिकॉज दीज आर टू कॉन्स्टेंट टर्म्स विच आर अलाइक। -6x - 2y + 3x² के साथ कोई और दूसरा लाइक टर्म नहीं है। सो फाइनली वी गॉट 6 - 6x - 2y + 3x² as the answer. Let's start with question number 13. Question number 13 में x, y, z वेरिएबल्स को लेके ही सारे टर्म्स बने हुए हैं और हमें फर्स्ट रिमूव करना पड़ेगा जो ये राउंड ब्रैकेट्स हैं। तो उसके लिए राउंड ब्रैकेट्स तक जो भी टर्म्स है एज इट इज़ लिख लेते हैं, xy माइनस yz माइनस zx माइनस yx। अब यहाँ पर आ गया माइनस बाहर है और 3 अंदर है, मतलब +3 अंदर है, सो माइनस प्लस हो जाएगा क्या, -3y, वी नो इट ऑलरेडी, और माइनस और माइनस हो जाएगा +xz, सेम साइन पॉजिटिव देगा, सो +xz। नाउ अगेन हियर माइनस बाहर है और अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब +1 है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, सो माइनस और प्लस हो जाएगा, डिफरेंट साइन -xy, और माइनस और माइनस यहाँ पर है, माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा बिकॉज सेम साइन zy। क्लोज द कर्ली ब्रेसेस, क्लोज द स्क्वायर ब्रैकेट। अभी यहाँ पर अगर कोई लाइक टर्म्स हैं हम देख लेते हैं, यहाँ पर xy है और यहाँ पर -xy है, मतलब इट्स लाइक 1 हियर एंड -1 हियर एज न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, तो 1 - 1 तो 0 हो जाएगा। तो 0 करने के लिए मैं ऐसे कट कर देती हूँ। कट मतलब वो डिवीजन में वाला कैंसिलेशन नहीं है, ये है 1 - 1 0। सो अंदर क्या रह गया कर्ली ब्रेसेस के, -3y + xz + zy। क्लोज द कर्ली ब्रेसेस, क्लोज द स्क्वायर ब्रैकेट। अब हम रिमूव करेंगे कर्ली ब्रेसेस। सो यहाँ पर माइनस और माइनस, बाहर माइनस अंदर भी माइनस है, सो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, वी नो सेम साइन, माइनस और प्लस डिफरेंट साइन, तो -xz और माइनस और प्लस होगा अगेन डिफरेंट साइन, सो -zy। अभी जितने लाइक टर्म्स हैं उनको सिंप्लीफिकेशन करेंगे। यहाँ पर yz है और -zy है, राइट, तो ये दोनों yz और zy एक ही है। मैं चाहे y को पहले लिखूँ या z को पहले लिखूँ, जैसे यहाँ पर z पहले लिखा हुआ है, वो दोनों ही लाइक टर्म्स हैं। और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -1 है, कुछ भी नहीं लिखा है तो 1 है, यहाँ पर -1 है, कुछ भी नहीं लिखा है तो -1 है, बिकॉज साइन इज माइनस। तो 1 - पहले की तरह 0 हो जाएगा, सो वी कट देम ऑफ। और यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा, -zx और -xz। अगेन zx और xz लाइक टर्म्स हैं, z पहले लिखूँ या x पहले लिखूँ, सेम ही है, सेम ही वेरिएबल्स हैं और पावर भी सेम है, 1 1 1 1। सो ये लाइक टर्म्स हैं और उनका जो कोफिशिएंट है यहाँ पर -1 है, यहाँ पर भी -1 है, सो लाइक टर्म्स हैं और कोफिशिएंट भी सेम साइन के हैं। सो इट बी -1 -1 -2xz + 3y। नाउ इज द टाइम फॉर अस टू रिमूव द स्क्वायर ब्रैकेट्स। xy माइनस और माइनस, या दोनों माइनस है, बाहर माइनस अंदर माइनस, सो इट विल बी +2xz, राइट, एंड यहाँ पर माइनस है और बाहर प्लस है, सो इट विल बिकम -3y। सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13. We'll continue doing the rest of the questions from exercise 8D in our next video. So if you want to watch that, please like, share and subscribe to my channel, Siddhi Academics. Thank you. Bye.